Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. So student, from previous video, all of you must comport with the certain words. So before starting today's discussion, we need to revise in just 2 minutes all the terms whatever you get from previous two video. Now first was the chapter's name measurement, gives the birth of new terms, that's physical quantity, which is expressed in two format, either fundamental or derived. And if it express direction then vector, and it does not consist of direction then of course a scalar, and unit is the way through which you can express fundamental quantity, right? And you have to know six fundamental physical quantity. Among them first is length, and for express length, for measurement of length, you have two system. One of them is British system and another is metric system. In metric system, meter is always in the center, right? And if you want to express a smaller than meter, then you have some prefix word like deci for 10 times smaller, centi for 100 times, and for 1000 times there is milli, then 1 lakh times, then micro, then nano, then pico, and of course larger, 10 times larger than meter, then of course deca, then hecto, then kilo, then mega, and then giga, and again terabyte. So tera. So basically these are the terms to express a smaller and larger length but in metric system. But you cannot do so in British system. Why? Because you cannot express millifoot, megafoot, not. Because if you want to express foot as a unit in British system, then a smaller is known as inch. And for larger, there is of course yard, there is mile to express. And roughly you need to know 3 foot is equal to 1 yard and 5280 foot is equal to 1 mile. Roughly 1 mile is equal to 1.609. It means 1.5 kilometer is equal to 1 mile. So basically that is the point whatever you learn, and you also learn to convert centimeter into inch. And what is it? 2.54 centimeter is equal to 1 inch. So I hope is it clear. And now after understanding two system for measurement of length, you have third system. What is it? Indian system of measurement of length. Is that clear? Indian system for measurement of length. So basically in Indian system for the measurement of length, you must need to know some terms. So what was the topic? Indian system for measurement of length. So the smallest form in the Indian system is of course परमाणु. आते समझ में आ रही है? परमाणु मीन्स, परमाणु इज अ हिंदी टर्म, इट्स मीनिंग इज द स्मॉलेस्ट. इसका छोटा सा बात समझें कि परमाणु क्या है? लेंथ को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट है और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमाणु. बट 8 परमाणु के आपस में मिलने से क्या बनता है? तो वो बनता है एक रजकण. अब 8 रजकण के आपस में मिलने से, 8 रजकण के आपस में मिलने से बनता है क्या? एक लिक्सास. अब 8 लिक्सास के आपस में मिलने से क्या बन रहा है? 8 लिक्सास के आपस में मिलने से बनता है एक योका मध्या. योका मध्यास. और 8 योका मध्यास के आपस में मिलने से क्या बन रहा है? योभा मध्यास. एक
योभा मध्यास, और यहाँ पे 8 योभा मध्यास, योभा मध्यास के आपस में मिलने से क्या बन रहा है, एक अंगुल। और फिर देखेंगे तो 8 अंगुल के आपस में मिलने से, 8 अंगुल के आपस में मिलने से एक धनुर्मुष्टि। क्या मिलने से क्या बन रहा है, अब ये समझो, अंगुल अभी भी यूज होता है किस टर्म में, तो गांव में देखोगे कोई लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा 1 अंगुल का था, 2 अंगुल का था, तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस। तो बेसिकली 5 8 8 8 8। अब इतना बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। आप देखोगे कंप्यूटर आज के टाइम में सबसे डेवलप डिवाइसेस है, उसको स्टोरेज करने के लिए, कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए उसके पास एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं 0-1 के फॉर्मेट में। कंप्यूटर कुछ भी स्टोर करेगा तो बाइनरी फॉर्म में करेगा, और बाइनरी फॉर्म में किस फॉर्म में, तो 0-1। अब ये जो एक 0-1 का फॉर्मेट हुआ इसको बोलते हैं बिट, इसको क्या बोलते हैं, BIT, बिट। और 8 बिट के आपस में मिलने से एक बाइट बनता है। आप समझो इंडियन सिस्टम ऑफ कोडिंग जो यहाँ पे है 8888, उस 8 का यूज बीट से बाइट बनाने के लिए भी किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये एक आइडिया है जो आपको आना चाहिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स के लिए। और मेजरमेंट में कुछ लेंथ बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे योजन। समझ में आ रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, योजन। योजन बेसिकली आप देखोगे तो हनुमान चालीसा के अंदर भी एक टर्म आता है योजन। योजन किस लिए, कि हनुमान जी जब जा रहे थे इंडिया से श्रीलंका, वो जो समुद्र का डिस्टेंस है उसको कवर करते हुए, तो आपको दिखेगा कि वहां पे योजन टर्म्स का यूज हुआ है। हनुमान चालीसा के अंदर भी आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे परमाणु, रजकण, लिक्सा। अभी ये लिक्सा क्या होता है, तो ये देखोगे तो आपको एग ऑफ लाइस, ये लिक्सा कितना बड़ा होता है, तो एग ऑफ लाइस। बात समझ में आ रहा है, लाइस के एग जितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई। अब समझो 8 लिक्सा इज इक्वल टू 1 योका मध्य, 8 योका मध्य इज इक्वल टू 1 योभा मध्य, 8 योभा मध्य इज इक्वल टू 1 अंगुल, एंड 8 अंगुल इज इक्वल टू 1 धनुर्मुष्टि। और बहुत बड़ा यूनिट को मेजर करना है तो योजन, और योजन को आज के समय में बोले तो रफली आपको मिलेगा 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 योजन। क्लियर है, ओके फाइन। तो बेसिकली हमको समझ में आया कि ये सब वे था जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो। बट इंडिया में दूसरे फॉरेनर्स, बहुत सारे रूलर्स आए जो इंडिया में रूल किए, उसमें सबसे जो एक लेंथ के बारे में कुछ एक्सप्रेस किए, तो वो कह सकते हो ये सब चीजें, ये डाटा कब का है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है। चंद्रगुप्त मौर्य आज से 5000 साल पहले इंडिया में बहुत बड़े किंग रहे हैं। तो ऑफकोर्स हिस्ट्री में आप लोग पढ़ लोगे इन सब चीज़ों को, चंद्रगुप्त मौर्य किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में रहे थे। बट ऑफकोर्स उस टाइम पे इस तरीके से मेजर किया जाता है। बट धीरे धीरे कुछ सल्तनत डायनेस्टी आई, फिर मुगल डायनेस्टी आई, और मुगल डायनेस्टी में अकबर एक बहुत फेमस नाम है जिन्होंने एक बुक लिखा था और उसका नाम था आइन अ अकबरी, आइन अ अकबरी, आइन अ अकबरी। बात समझ में आ रहा है। तो आइन अ अकबरी के अंदर मेंशन था एक चीज, वो था गज। अब ये गज वर्ड को ध्यान रखना, गज वर्ड कब से आने लगा, तो मुगल के टाइम पे जब लैंड को मेजर करने लगा तो उनके हिसाब से गज होता था। अब गज क्या होता था, तो गज बेसिकली एक लैंड का एरिया के लिए मेजर किया जाता था, और उसमें क्या था, तौसीज। 24 तौसीज इज इक्वल टू 24 तौसीज इज इक्वल टू 1 गज। समझ में आ रहा है, जैसे 1 गज इतना एरिया हुआ तो यहाँ पर
24 छोटे छोटे एरिया में बांट दिया और प्रत्येक को बोला तौसीज, और फिर जो एरिया था उस पूरे को बोला 1 गज। बात समझ में आ रही? तो गज को ध्यान रखना होगा और उससे दूसरा जो वर्ड है तौसीज। अब हम अपने पास ना कुछ डिवाइस फिक्स नहीं था। डिवाइस फिक्स नहीं था मीन्स हमारे पास कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो हम लोग क्या यूज करते थे? जनरली जो हम लोग यूज करते थे वो था हमारा हाथ और पैर मेजर करने के लिए। तो अपने पास सबसे जो छोटा था वो था थंब, ठीक है। उसके बाद आता है स्पैन हाथ के लिए, और फिर आता है कैविट। ये 3 चीज ध्यान रखना होगा। एक अंगूठा का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको बोलते हैं थंब। इस अंगूठा से लेकर के इसके लास्ट उंगली के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलते हैं? बित्ता। एंड इन बित्ता आज के समय में कॉमनली आप देखोगे तो आदमी गांव में बोलते रहता है 5 बित्ता, 10 बित्ता, 15 बित्ता। तो ये जो बित्ता वर्ड है इसके लिए क्या यूज होता है? तो यहां पे देखोगे स्पैन, ठीक है। तो एक हो गया थंब और दूसरा हो गया स्पैन, और तीसरा जो हो गया वो हो गया कैविट। एक पूरा हाथ को मेजर करने के लिए अपने पास क्या है? कैविट। अब आता है फुट। अब ये फुट क्या होता है? तो पैर का जो डिस्टेंस है, आपका जो पैर है उसका जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? फुट। ओके। और फुट से जो बड़ा होगा, फुट से जो बड़ा होगा जिसको आप डेग बोलते हो, एक पैर से दूसरे पैर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेश। तो ये सब टर्म ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग लिख भी लोगे। तो आई होप कि ये उतार ही लिया होगा। आई होप कि नोट डाउन हो गया है। तो इसको मिटा देते हैं, अदरवाइज पॉज करके पीछे जाके आप इसको मिटा सकते हो, आई मीन नोट डाउन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास एक टर्म है जिसको क्या बोल सकते हो? स्पाइन, हैंड स्पैन। दूसरा क्या हो सकता है? थंब, थंब पता है। उसके बाद आप देखोगे स्पाइन, थम्स, उसके बाद थर्ड जो हो जाएगा कैविट। ओके, कैविट समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आप क्या? फुट, और फुट से बड़ा क्या होगा? तो पेश। ओके, पेश एक डेग, और उससे बड़ा क्या हो सकता है? तो वो आपको मिलेगा फैटम। ओके, क्लियर है ये वर्ड फैटम। तो बेसिकली देखोगे तो आपको ऑप्शन क्या मिला? थंब, स्पैन, कैविट। फुट के लिए फुट ही है ऑफ कोर्स, और ब्रिटिश सिस्टम में जो फुट यूज हुआ वही है। ये लगभग इनिशियल स्टेज में फुट का यूज करते थे। उसके बाद देखेंगे तो पेस मीन्स डेग, ओके, और फैटम मीन्स इस यहाँ से जो इस हाथ से जो इस हाथ के बीच में डिस्टेंस है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पूरा का पूरा फैटम बोलेंगे। तो ये बात समझ में आ गया कि ये सब डिवाइसेस है किस चीज के लिए? मेजरिंग लेंथ, फॉर मेजरिंग लेंथ। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये सब डिवाइसेस तो ठीक है, बट सबका हैंड स्पैन, कैविट सब अलग अलग होता है। तो जब ट्रेड स्टार्ट हो गया 16 और 14 सेंचुरी में, 1948 में, ऑफ कोर्स वास्को डी गामा एट गोवा, कालीकट, व्हाटएवर। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि किसी का लेंथ हैंड का कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो यहाँ पर जरूरत पड़ा अपने को स्टैंडर्ड यूनिट का। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स का। और नीड जरूरत क्यों पड़ा स्टैंडर्ड यूनिट का? क्यों जरूरत क्यों है? नीड, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड यूनिट? तो 3 वर्ड जो है बहुत ध्यान रखना होगा इसके अंदर। वो 3 वर्ड क्या है भाई? पहला तो एक्यूरेसी के लिए। किस चीज के लिए? एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ? कि भाई एक्यूरेट हो, जो हम सामान दे रहे हैं
उसका लेंथ, मान लो ये डस्टर है तो अभी इसका लेंथ और दूसरे एग्जैक्टली हम जो मेजर कर रहे हैं और दूसरे कंट्री में जो मेजर कर रहा है, अभी मान लो कोई आदमी है जो इसको इंच में कन्वर्ट करके दिया, इंच में मतलब बोला 3 इंच है और दूसरा 5 mm दे दिया। अब समझो 5 मिलीमीटर और उधर 3 इंच, डाटा देखने से क्या लगेगा कि 5 मिलीमीटर बड़ा है, बट जब यूनिट देखोगे तो पता चलेगा ओ शिट ये तो छोटा है। तो बेसिकली वो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी होना चाहिए। दूसरा एक चीज है वो है रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी मीन्स रिलायबल होना चाहिए कि वो विश्वास हो। कोई फिक्स, जैसे ये स्केल है तो हमको विश्वास है कि ये छोटा या बड़ा नहीं करेगा, बट मैं जब मेजर करूंगा तो हो सकता है कि जब किसी से सामान ले रहे हैं तो छोटा कर ले हाथ को, और जब सामान दे रहे हैं तो बड़ा कर ले, या फिर सामान दे रहे हैं तो बड़ा कर ले और सामान ले रहे हैं तो छोटा कर ले, ऐसा हो सकता है। तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है वो है यूनिफॉर्मिलिटी। मतलब 3 वर्ड को आपको ध्यान रखना है, पहला एक्यूरेसी, दूसरा रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज यूनिफॉर्मिलिटी। इन सब के लिए जरूरत पड़ा क्या चीज का? तो स्टैंडर्ड यूनिट का। नीड्स समझ में आया? नीड्स जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले एक्यूरेसी, दूसरा रिलायबिलिटी और तीसरा यूनिफॉर्मिलिटी। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मिलिटी। ओके, तो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और तीसरा एक्यूरेसी। क्लियर है? तो चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो लेंथ था हमारा यूनिट, अभी एक और चीज है वो है रॉयल कैबिट। रॉयल कैबिट समझते हो आप लोग? जो इजिप्ट, मिस्र का सभ्यता था, मिस्र का जो पूरा एक कह सकते हो उसका जो सिविलाइजेशन था, उसमें जो यूनिट मेजर किया जाता था वो राजा के हाथ को ना स्टैंडर्ड मान लिया जाता था। मतलब पूरा कंट्री में राजा का हाथ ही स्टैंडर्ड है। ओके, अब एक बात और समझो कि कह सकते हो कि राजा का जो हाथ था वो इजिप्टियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी के हिसाब से वो लेंथ को मेजर करता था सिंपली। अब उसके बाद लेंथ के बारे में बहुत देर से बात हुई और आज के समय में जो मीटर है, किलोमीटर है या फिर फुट है वो एग्जिस्ट करता है, बट हमने पूरा एक हिस्ट्री देखा कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? तो लेंथ के बारे में हम लोग समझ गए हैं, तो अब मास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अपने को कितना कितना फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना था? तो सबसे पहला पढ़ना था लेंथ, दूसरा पढ़ना था मास, तीसरा पढ़ना था टाइम, चौथा क्या पढ़ना था? टेम्परेचर या फिर कह सकते हो वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद डेंसिटी और उसके बाद आपको पढ़ना था डेंसिटी के बाद टेम्परेचर। तो हमने लेंथ को पढ़ लिया, लेंथ को काफी डिटेल्स में पढ़ा, मैट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ऑफ कोर्स इंडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इजिप्टियन सिस्टम, डिफरेंट ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो या फिर बॉडी पार्ट्स एज अ मेजरमेंट यूनिट, ये भी बात पढ़ा। उसके बाद आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरा मास। मास लेंथ को हम मेजर करते हैं तो मेनली देखोगे यहाँ पे एक मीटर के फॉर्मेट में और एक फुट के और एक सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। अब ये सेंटीमीटर क्या है वो बात हम लोग बाद में देखेंगे, बट सेंटीमीटर के फॉर्मेट में लेंथ को मेजर कर सकते हैं या फिर लेंथ को मेजर कर सकते हैं किस फॉर्मेट में? मीटर के फॉर्मेट में या फिर फुट के फॉर्मेट में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज? मास।
बेसिकली मास क्या होता है, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड देयर मास। कितना अमाउंट में है, अब लेंथ तो कुछ होगा बट उसका कुछ मास भी होगा, जैसे इसको हम मेजर करें तो इसका कुछ मास होगा, राइट। फिर इस ऑब्जेक्ट को करें तो इसका कुछ और मास होगा। तो बेसिकली सारे चीजों का कुछ ना कुछ मास होता है, और मास कैन बी डिफाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मास। तो मास का आप देखोगे तो जो सिस्टम है हमारे पास, कौन सा सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम है। तो मैट्रिक सिस्टम में देखोगे तो मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, राइट। केजी, आप मास को किस में मेजर करते हो, केजी में या फिर ग्राम में, 500 ग्राम या फिर केजी। और मास को जब आप ब्रिटिश सिस्टम में मेजर करते हो तो फिर वहां पे होता है पाउंड, पाउंड। तो यहां पर दो चीज आपको समझना होगा, एक पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश सिस्टम। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में फुट था ना लेंथ के लिए, तो ब्रिटिश सिस्टम में मास के लिए क्या है, पाउंड है। इज दैट क्लियर। और जो मैट्रिक सिस्टम है वहां पे क्या है, ग्राम। अब देखो ग्राम में किलो लगा लो तो किलोग्राम हो गया, समझ रहे हो, मीटर में जैसे किलोमीटर, और यहां पर किलोग्राम। क्लियर है ये वर्ड, ओके। तो बेसिकली ग्राम को जब आप पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो ऑफकोर्स ग्राम छोटा है और पाउंड बड़ा है। तो 454 लगभग 450 ग्राम जब आपस में मिलता है तब जाके 1 पाउंड बनता है। बात समझ में आ रहा है, 1 पाउंड बनता है। तो बेसिकली जब आप WWF, आजकल WWE हो गया है, तो बेसिकली जब आप देखेंगे तो वहां पर जो वेट बताया जाता है, वेट तो नहीं मास जो बताया जाता है, बाद में समझ में आएगा वेट और मास के बीच में डिफरेंस, बट वो जो बताया जाता है तो वो आपको, आप वेट करते हो तो कैसे वेट करते हो, मीन्स 52 kg, किलोग्राम में। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग मेजर करता है किसमें, पाउंड में। और लगभग लगभग 450 ग्राम मीन्स हाफ केजी इज इक्वल टू 1 पाउंड। मीन्स यदि कोई आदमी 50 केजी का है तो पाउंड में क्या आ जाएगा, लगभग 105 केजी, 105 पाउंड। बात समझ में आ रहा है, केजी तो नहीं, 105 पाउंड। तो बेसिकली ये बात को समझो कि मास को मेजर करने के लिए एक आपके पास है ग्राम, अब ये किलोग्राम हो सकता है, ओके, और यहां पे पाउंड। क्लियर है, ओके। बेसिकली मास को और छोटा मेजर करने के लिए एक और इंडियन सिस्टम में आता है टर्म जिसको बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं, कैरेट। कैरेट भी क्या है, मेजर करने का एक तरीका है। किसको, कैरेट मेजर करने का एक तरीका है, क्या चीज का, मास को। जैसे आप कभी गोल्ड खरीदने जाओगे तो क्या बोलेगा, कैरेट, कितना कैरेट गोल्ड है। बात समझ में आ रहा है, उसका प्यूरिटी को भी बताता है बट मास को, मास के लिए बताया गया। और कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 कैरेट। समझ में आ रहा है। मेडिसिन, जब कभी मेडिसिन ले लोगे तो मेडिसिन के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिखा रहेगा 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। देखो यहाँ पे देखोगे तो 100 मिलीग्राम, मतलब बहुत छोटा मास, इसके अंदर कुछ और चीजों का एडेड है। क्लियर है बात है, ओके। तो कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, ये बात समझ में आया। छोटा, ये मिलीग्राम बहुत कम होता है, मिलीग्राम, मिली समझ में आ रहा है, 1000 टाइम्स छोटा होगा। मिली वर्ड्स किस लिए यूज किया जाता है, मिली, मिली टर्म्स 1000 के लिए यूज किया जाता है कि 1000 टाइम्स छोटा, ग्राम से 1000 गुना छोटा होगा तब मिलीग्राम। तो 200 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 कैरेट। क्लियर है बात, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है मास का यूनिट। तो मास का यूनिट आप कह सकते हो AMU होता है। एक और यूनिट क्या होता है, AMU। AMU का फुल नेम एटॉमिक मास
यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। वेरी गुड। तो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट में क्या समझ में आना चाहिए आपको, तो एटॉमिक मास यूनिट ना बहुत 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 छोटा चीज है, मतलब मिलीग्राम से भी छोटा जब किसी का मास हो, जैसे एटम का मास। अब सोचो एटम का मास तो बहुत छोटा होगा, तो एटम का मास क्या होता है कि एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप सोचो कितना छोटा है, 20 -27। -12 के लिए आप यूज करते थे क्या चीज, पिको। पिको -12 के लिए आप क्या यूज करते थे, पिको, और यहां पर किलोग्राम है। क्लियर है बात। तो ये बहुत 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 छोटा एटम का मास मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। और बेसिकली ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, कैरेट, एएमयू एंड पाउंड। और ग्राम सबको पता होता है कि मास को मेजरली हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो यहां पे आपने देखा कि लाइक मास था, और यहां पर आपने देखा सबसे पहले क्या था, लेंथ, दूसरा क्या था, मास, और तीसरा अब हम लोग जानने वाले हैं टाइम। अब यहाँ पे देखोगे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर, या फिर ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने का ना जो तरीका है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम को एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, तो सेकंड में कर सकते हैं। अब ये टाइम को ना किसी भी सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में करो, या फिर कह सकते हो तुम मैट्रिक सिस्टम में करो, या इंडियन सिस्टम में करो, वहां पर एक ही चीज है, वो क्या है, कोश, सेकेंड। क्या है, अब सेकेंड के 60 सेकेंड के आपस में मिलने से क्या बनेगा, मिनट, और 60 मिनट के आपस में मिलने से आवर, और आवर के आपस में मिलने से कोस, डे, और डे के आपस में मिलने से वीक, और वीक के आपस में मिलने से मंथ, एंड मंथ के आपस में मिलने से ऑफ कोर्स ईयर। सो बेसिकली ईयर से लेकर के सेकेंड तक ये सब का सब क्या है, टाइम का यूनिट है। तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। पाउंड के लिए आप पी लिख सकते हो। तो यहां पे देखो लेंथ, मास और टाइम को मिला करके ना क्या किया गया, 3 सिस्टम को बनाया गया। 3 सिस्टम्स आर देयर, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। अब इस सिस्टम को क्या बोला गया, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। इसको बोला गया स्टैंडर्ड सिस्टम, या फिर कह सकते हो एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और इसको कहा गया सीजीएस सिस्टम। अब देखो यहां पे ना मेजर करने का 3 सिस्टम नाम ही दे दिया, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। ये सब बना कैसे, ये सब एक्रोनेम है किसका, तो लेंथ, मास और टाइम को आपस में मिला करके ये लोग बनाया। अब देखो सीजीएस सिस्टम में ना कोई भी चीज बहुत छोटा जब रिप्रेजेंट करना हो, जैसे लेंथ के लिए मीटर, और उससे छोटा 100 टाइम्स छोटा तो हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे किलोग्राम, और स्मॉलर यूनिट क्या था, ग्राम, और सेकेंड टाइम के लिए सेकेंड। तो बेसिकली सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। जब एफपीएस सिस्टम हो जाए समझो ये ब्रिटिश सिस्टम है, जब एमकेएस सिस्टम हो तो ये फ्रांस का सिस्टम है बेसिकली, और उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम ही बाद में इंटरनेशनल सिस्टम बन गया, और उसी को एसआई यूनिट बोलने लगे। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम तो इज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एसआई सिस्टम बोलेंगे। तो एसआई सिस्टम बाद में बना एमकेएस, और सीजीएस किस लिए, स्मॉलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद और भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को भी हम लोग समझे। अब हम लोग अगले वीडियोस में कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फिजिकल क्वांटिटी
और उसके बाद आगे कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा इस चैप्टर में और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, सेवा समाप्त हुई। टेक केयर।